मिरांडा हाउस की हिंदी नाट्य समिति की स्थापना 1957 में कमला सांघी के नेतृत्व और चंद कर्मठ छात्राओं के सहयोग से हुई। तब ये सिर्फ एक छोटी सी नाटक मंडली थी जो आज अपनी निरंतरता और सक्रियता की वजह से रंग पटल पर एक सशक्त पहचान बना चुकी है। इस संस्था की शुरुआत ऐसे दौर में हुई जब विश्वविद्यालय का माहौल अंग्रेजीदा था। ऐसे समय में हिंदी विभाग की प्राध्यापिका कमला सांघी ने प्रेमचंद के उपन्यास गोदान का होरी नाम से नाट्य रूपांतर तैयार किया और उसका निर्देशन भी किया। ये प्रस्तुति उस समय एक क्रांतिकारी कदम था जो भविष्य में मील का पत्थर साबित हुआ। पूरे हिंदी विभाग, विशेषकर इंदुजा अवस्थी, शैल कुमारी व अर्चना वर्मा के निर्देशन में संस्था की गतिविधियां जारी रही। ये संस्था आज जिस मुकाम पर है, सब उन्हीं के योगदान का परिणाम है। So Anukriti was born in 1996 in the middle of the night. In fact, it was around 1:30 in the night in Miranda House Auditorium. I was sitting with Shell ma'am and I was just discussing that all the dramatic societies have a name, like Kirori Mull has Players, Shakespeare Society, St. Stephen's College, Ramjas had Shunya, so why can't we have a name? So the first name which she said was, okay, let's have Anukriti. Said Anukriti meaning reflection, echo, and that's how Anukriti was born, in the middle of the night during the rehearsals of Reshmi Rumal. अपने चुने हुए मार्ग पर अनुकृति की छात्राओं ने देशी विदेशी और लोक प्रचलित नाटकों को खेला और इन नाटकों को खेलने के क्रम ने उन्हें विभिन्न प्रकार की रंग शैलियों जैसे ग्रीक, क्लासिकल, ट्रेडिशनल, रियलिस्टिक, एब्सर्ड और ब्रेस्टियन आदि को करीब से सीखने और बारीकी से समझने का मौका दिया। साल दर साल इस कारवां से छात्राएं जुड़ती रहती हैं और ये सफ़र हर बार एक नए पड़ाव पर नए अनुभवों के साथ बढ़ता रहता है। With the staging of Hori, a Hindi play as its first full-length production, the society marked its extraordinary arrival in an English-dominated theatre circuit. It was tradition for the students of Miranda House and St. Stephen's to come together to perform English full-length plays. But the society broke this barrier and introduced a play that was performed only by women, a lot of who played male characters. Since then, the full-length production prevails to be the crowning event of the annual Anukriti calendar. It provides the students with the golden opportunity to learn from renowned directors from across the country. So we used to have a one-act play which we took to competitions, but full length is what we all looked forward for. It was like 2 months of full professional exposure to theatre with a director from National School of Drama, and we performed in National School of Drama Auditorium as well as Sri Ram Center of College all 3 years. And it was both a moment of pride and nervousness, and you're a little intimidated because you're representing your college in front of artists and audiences who are extremely experienced people in theatre. Some of our most celebrated productions have been Dhruv Swamini, Manto Ki Auratein, Reshmi Rumal, Jasma Odhan, Khoobsurat Bala, Troy Ki Auratein and Sarabe Electra, which was a last year's full-length production. Directors like Ram Gopal Bajaj, Devendra Raj Ankur, B.M. Shah, Mohan Maharishi, Anuradha Kapoor, Tripurari Sharma, Hema Singh, Satish Anand, Shilpi Marwa, Pankaj Saxena and Lokesh Jain guided the society every year with their expertise, a tradition that the students are proud to maintain. These plays attract a lot of praise from the audience and critics alike. I would like to share a newspaper article
way back in 1996. It was in one of the leading newspapers of India, that is the Hindustan Times, as you can see. The article was about the stage performers, and this is one of the photographs from our play, full-length play, Dhruv Swamini. And the article says, as for Miranda House, it is again one of the most active societies of the Delhi University, with the active support rendered by the principal of the college, the staff advisor of the society, Dr. Shail Kumari of the Hindi department, who has been involved in this field for almost 3 decades, says the success of the society goes to the credit of all the members under the able guidance of Simantini Datta, a second-year philosophy student. On September 26th, the Dramatic Society of Oxford University, England, came to Miranda House to perform King Lear, followed by a workshop. This article is really a matter of great pride for Anukriti. स्टेज प्लेज या वन एक्ट प्लेज कई बार किसी दूसरे लेखक की रचना पर आधारित भी होते हैं, तो कई बार सेल्फ रिटन भी। 2006 में अनुकृति के सदस्यों द्वारा स्वलिखित एवं स्वनिर्देशित एकांकी लाजी मंचित हुआ। ये एकांकी दर्शकों को ये सोचने के लिए विवश करता है कि असली आतंक क्या है और आतंकवादी कौन है। पिछले साल भी छात्राओं ने फाइल 2307 नामक स्वलिखित एवं स्वनिर्देशित नाटक की रचना करने का प्रयत्न किया और इसे दिल्ली के नामी थिएटर्स में मंचित किया। There's a lot we learned while writing the narrative to kind of continuously think what the audience would expect, and we tried to do thriller and mystery, so it was a really complicated process and we were doing it for the first time. So it was interesting, it was fun and very, very challenging. Like there were times that we thought that we shouldn't do this and we should just go with a already written play, or we should translate a play. But then we thought that maybe it's time that we try to incorporate this culture of writing our own plays. So that was interesting. In addition to its vibrant stage productions, the society produces street plays or nukkad nataks on various social and political issues. The plays boldly tackle concerns like gender and caste-based discrimination, environmental crisis, war and libertarian struggle, amongst many others, and have been revered for being way ahead of their time. The society is quick to take leadership in creating awareness on national and international current affairs, and has been instrumental in expressing activism with other organizations. एक बहुत ही दर्दनाक दुर्घटना घटी मेरी बहन के साथ, जिसका नाम निर्भया है, आप सबकी भी बहन बेटी। हमने अपने फेस्टिवल का वो टॉपिक रखा था कि हम बेटी बचाओ अभियान पर नुक्कड़ नाटक करेंगे, और संसद से लेकर स्लम तक हमने बेटी बचाओ अभियान के दौरान इसके खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए आवाज़ उठाया, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़, हस्तियों ने हिस्सा लिया। कमला भसन जी या फिर माया कृष्ण राव जैसे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। छात्राएं अक्सर इन नाटकों को आम जनता के करीब पहुंचाने के प्रयास में जेल के कैदियों से बात करने में भी नहीं कतराती। नुक्कड़ नाटकों के प्रदर्शन के द्वारा वो प्रभावित लोगों की समस्याओं को और विस्तार से समझने का अवसर भी पाती हैं। I think we all understood and why we wanted to take our plays to the actual streets and interact with people, because after every play ended, people would just come to us, and this is, we're talking about metro stations and shopping malls, a diverse kind of a diverse group of people, from daily wage workers to just people casually walking by, students, teachers, anybody would just come up to us and just we would be able to initiate a discussion with them on the issue, what we thought, what they thought, and sometimes they would actually give us more knowledge on the issue. They would and help us understand it better in terms of the challenges that they think that they face regarding any issue that we took. So it was we also understood, as a theatre society of a particular college, we do come from a we do come from a state of privilege. So we understood that it was also a responsibility and not just interest for theatre, that we needed to take
street plays beyond the university. Anukriti is not just a professional space, it's a family. Here we learn to love, we love to learn. From running around making every detail of a set picture perfect to taking heart-wrenching monologues. From writing poetry to composing music. कुर्ता चुन्नी पहनकर नुक्कड़ पर आओ आओ चिल्लाना और कॉलेजेस में पेरिफेरी के अंदर गो अनुकृति सुनना. स्टेज में कॉस्ट्यूम्स और लाइट्स के साथ अनजान कैरेक्टर्स में ढल जाना और एक कोने में बैठकर घंटों कैरेक्टराइजेशन करना. सुबह से शाम तक कॉलेज में रहना, साथ हंसना, साथ रोना. ये सब एहसास दिलाता है कि हम सिर्फ एक सोसाइटी नहीं बल्कि एक परिवार हैं. और इस परिवार को विगत 6 दशकों से हिंदी विभाग के अनवरत संरक्षण और दिशा निर्देशन मिला है. अनुकृति की इस विरासत को हिंदी विभाग ने बड़े प्यार दिलार से संजोया है. पिछले कुछ वर्षों में इस संस्था को निशा नाग, कविता भाटिया, रमा यादव व संगीता राय का सक्षम नेतृत्व मिला है और वर्तमान में पिछले 6 वर्षों से इसकी संयोजक डॉक्टर रेनू अरोरा ने अपनी प्रतिभा से समिति को हर बाधा से गुजरकर आगे बढ़ने का जोश दिया है. हमें मिरांडा हाउस पर और मिरांडा हाउस को इस विरासत पर नाज है. नमस्कार. अनुकृति हर वर्ष नई ऊर्जा और उमंग के साथ अपने एनुअल प्रोडक्शन की तैयारी करती है, लेकिन पिछले 1 साल से हम जिस तरह कोरोना महामारी के कारण घर की 4 दीवारी में कैद हैं, इस दौर में संभव नहीं है कि हम नाटक जैसी या रंगमंच जैसी सामूहिक गतिविधियों को अंजाम दे पाएं. तो हमारे सामने ये प्रश्न था कि 6 दशक से भी लंबी इस परंपरा को हम कैसे जारी रखें. और हमें ये मालूम था कि हम शायद वर्चुअल माध्यम से और वाचिक अभिनय के क्षेत्र में कुछ कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये था कि क्या करें. इस उलझन को सुलझाया हेमा जी ने और हमें कविता का रंगमंच करने की सलाह दी. छात्राओं की स्वीकृति ने इस पर मोहर लगा दी और हम जुट गए कविता का रंगमंच करने की दिशा में. हर बार कुछ नया करना, कुछ सार्थक करना हमारी कोशिश रहती है. इस बार तो हमारे लिए ये चुनौती और भी बड़ी थी क्योंकि हमें वर्चुअल माध्यम से ये करना था. कैमरे की दृष्टि से अभिनय करना, कैमरे की दृष्टि से प्रस्तुति देना, ये छात्राओं के लिए भी एक नया अनुभव था, नितांत नया अनुभव था. इस प्रस्तुति प्रक्रिया से गुजरते हुए हमने ये जाना कि कविता का रंगमंच मात्र शब्दों का उच्चारण नहीं है या केवल कविता को पढ़ना भर नहीं है, बल्कि कविता के भीतर निहित अर्थों को, उसकी सूक्ष्म परतों को तलाशना, उन्हें पकड़ना और संप्रेषित करना भी है. अनुभूति से अभिव्यक्ति की इस पूरी प्रक्रिया में छात्राओं ने अपने वाचिक अभिनय के साथ साथ अपने आंगिक अभिनय, वेशभूषा, मेकअप, लाइट, कैमरा और म्यूज़िक, इन तमाम चीज़ों का सहयोग लिया और इन सब चीज़ों के जुड़ने से जो एक पूरी प्रक्रिया होती है फुल लेंथ को करने की, एक प्रशिक्षण पाने की, वो भी साथ साथ चलती रही. तो आइए इस प्रस्तुति की प्रक्रिया के बारे में इस प्रस्तुति की निर्देशिका हेमा सिंह से कुछ जानते हैं. नमस्कार. ये कविता प्रस्तुति नाटक, साहित्य, अभिनय का एक संगम है. कहते हैं कि अगर नाटक में काव्य हो तो उसकी सुंदरता बहुत बढ़ जाती है, और देखा जाए तो हमारा अधिकतर जो नाट्य, अच्छा साहित्य है वो काव्य ही है, चाहे वो शेक्सपियर हो, ग्रीक प्लेज हो, और चाहे वो संस्कृत नाटक ही क्यों ना हो. मुझे बहुत खुशी है कि श्रीमती रेनू अरोरा जी ने बहुत ही सहर्ष इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और इसकी पूरी प्रस्तुति प्रक्रिया में वो साय की तरह हमारे साथ रहीं और भरसक मदद हमें दी. लेकिन इसमें एक बहुत दिलचस्प बात है, वो है कैमरे के सामने नाटक करना, कविता करना.
देखिए, ये जो समय है एक बहुत मुश्किल समय है और इसमें हमें डिजिटल मीडियम का सहारा लेना पड़ रहा है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कैमरे की भाषा की भी समझ हो हमें। जो इसकी पूरी प्रक्रिया रही है वो भी बहुत दिलचस्प रही और मेरे लिए एक बहुत नया अनुभव रही है, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारी कविताओं को चुना, फिर उसमें से भी कुछ कुछ कविताएं चुनी, फिर छात्राओं ने उन्हें व्याख्यात किया, फिर उसको वाचिक अभिनय, आंगिक अभिनय के साथ साथ करते हुए घर का अपना एक कोना चुना जहाँ पर पात्रों के अनुसार अपनी वेशभूषा चुनी, अपना रूप सज्जा की और यहाँ तक कि लाइटिंग की। यानी दिन के समय कितने बजे सूर्य का प्रकाश कमरे में रहता है या फिर रात को बल्ब की रोशनी में कितना प्रकाश रहता है, और कैमरे के डिफरेंट एंगल्स, यानी कहाँ देखें कहाँ नहीं देखें, कितनी आंख ऊपर करें कितनी आंख नीचे करें, कितनी ज़्यादा एक्टिंग करें, अभिनय की तीव्रता कितनी रखें, ये सब बातें उन्होंने समझी और इतना सब कुछ करने के बाद ये प्रस्तुति बन पाई है। ये एक तरह से मोनोलॉग है और कविता की ये जो व्याख्या है वो बहुत तरीके से हो सकती है, क्योंकि कविता अपने आप में हमको इतनी स्वतंत्रता देती है कि हम उसे बहुत तरह से व्याख्यात कर सकें। अनुकृति के साथ मेरा बहुत गहरा जुड़ाव है। मैं एक मिरांडियन हूँ और अनुकृति में मैंने बहुत सारे अभिनय किए हैं उनके नाटकों में, और बाद में समय समय पर आकर मैंने नाटक निर्देशित भी किए हैं। मैं मिरांडा हाउस की प्रधानाचार्य, छात्राओं और विशेष रूप से रेणु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे ये अवसर फिर से मिला कि मैं आपके सामने कविताओं की प्रस्तुति लेकर आ सकूँ, जो कि अपने आप में एक नया प्रयास है। और साथ ही मैं अपने एडिटर श्री अमित सहगल जी का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इस पूरी कविताओं को जोड़कर उसको एक नया स्वरूप दिया है। आशा है कि आप छात्राओं ने जो कुछ शब्दों के द्वारा, कविता के द्वारा कहने की कोशिश की है उसे आप समझेंगे, और जो उन्होंने अनकहा कहा है वो भी आप समझेंगे, उसका आनंद उठाएंगे और उसे सराहेंगे। ये कविताएं अपनी समग्रता में हमें देखते सुनते इस बात का एहसास कराती हैं कि तमाम बदलावों के बावजूद भी, तमाम विकास के बावजूद भी हमारे भीतर रंग भेद, जाति भेद, लिंग भेद की धारणाएं कहीं ना कहीं बर्फ की तरह जमी हुई हैं। और ये कविताएं हमसे प्रश्न करती हैं कि ये बर्फ कब पिघलेगी। हमें आशा है कि ये कविताएं आपको जितना आनंदित करेंगी उतना ही सोचने पर भी विवश करेंगे। तो आइए देखते हैं अनुकृति की नई प्रस्तुति, ये बर्फ कब पिघलेगी। अपनी जगह से गिरकर कहीं के नहीं रहते केश, औरतें और नाखून। अन्वय करते थे किसी श्लोक को ऐसे हमारे संस्कृत टीचर, और मारे डर के जम जाती थी हम लड़कियां अपनी जगह पर। जगह क्या होती है ये वैसे जान लिया था हमने अपनी पहली कक्षा में। याद था हमें एक एक क्षण आरंभिक पाठों का। राम पाठशाला जा राधा, खाना पका राम, आ बताशा खा राधा, झाड़ू लगा भैया सोएगा जाकर बिस्तर बिछा, आहा नया घर है राम, देखिए तेरा कमरा है और मेरा। ओ पगली, लड़कियां हवा, धूप, मिट्टी होती हैं, उनका कोई घर नहीं होता। जिनका कोई घर नहीं होता उनकी होती है भला कौन सी जगह होती है ऐसी जो छूट जाने पर औरत हो जाती है। कटे हुए नाखूनों, कंघी में फंसकर बाहर आए केशों से एकदम से बुखार दी जाने वाली।
धड़ छूटे, छूट गए लोग बाग। कुछ प्रश्न पीछे पड़े थे, वे भी छूटती गई जगह है, लेकिन कभी भी तो नेल कटर या कंघियों में फंसे पड़े होने का एहसास नहीं हुआ। परंपरा से छूटकर बस ये लगता है किसी बड़े क्लासिक से पास कोर्स बीए के प्रश्न पत्र पर छिटकी छोटी सी पंक्ति हो। चाहती नहीं, लेकिन कोई करने बैठे मेरी व्याख्या सप्रसंग। सारे संदर्भों के बाद मुश्किल से उड़कर पहुंची हूँ। ऐसे ही समझी पड़ी जाऊं जैसे तुकाराम का कोई अधूरा भंग। बाबा, मुझे उतनी दूर मत भेजना जहाँ मुझसे मिलने खातिर घर की बकरियां बेचनी पड़े तुम्हें। मत भेजना उस देश में जहाँ आदमी से ज्यादा ईश्वर बसते हो। जंगल, नदी, पहाड़ नहीं हो जहाँ, वहाँ मत कराना मेरा लगन। और वहाँ तो कतई नहीं जहाँ की सड़कों पर मान से भी ज्यादा तेज दौड़ती हो मोटर गाड़ियाँ, ऊंचे ऊंचे मकान और दुकानें बड़ी बड़ी। उस घर में मत जोड़ना मेरा रिश्ता जहाँ पे बड़ा सा खुला आंगन ना हो, मुर्गे की बांग पर चाह होती ना हो सुबह, और शाम पिछवाड़े से जहाँ पहाड़ी पर डूबता सूरज ना दिखे। मत चुनना ऐसा घर जो पोचाई हंडियों में डूबा रहता हो अक्सर। काहिल निकम्मा हो, माहिर हो मेले से लड़कियां उड़ा ले जाने में। ऐसा घर मत चुनना मेरे खातिर। कोई भारी लोटा तो नहीं कि जब चाह बदल लूंगी अच्छा या बुरा होने पर। जो बात बात में बात करे लाठी डंडे की, निकाले तीर धनुष कुल्हाड़ी, जब चाहे चला जाए बंगाल, आसाम, कश्मीर। ऐसा वर नहीं चाहिए मुझे। और मत देना उसके हाथ में मेरा हाथ जिन हाथों ने कभी कोई पेड़ नहीं लगाया, फसलें नहीं उगाई, जिन हाथों ने नहीं दिया कभी किसी का साथ, किसी का बोझ नहीं उठाया। और तो और जो नहीं लिखना जानता हो, ह से हाथ।
तुम जानते हो, पुरुष से भिन्न एक स्त्री का एकांत घर, प्रेम और जाति से अलग एक स्त्री को उसकी अपनी जमीन के बारे में बता सकते हो तुम? बता सकते हो सदियों से अपना घर तलाशती उस बेचैन स्त्री को उसके घर का पता? क्या तुम जानते हो अपनी कल्पना में किस तरह एक ही समय में स्वयं को स्थापित और निर्वासित करती है एक स्त्री? सपनों में भागती एक स्त्री का पीछा करते कभी देखा है तुमने उसे रिश्तों के कुरुक्षेत्र में अपने आप से लड़ते? तन के भूगोल से परे एक स्त्री के मन की गांठें खोलकर कभी पढ़ा है तुमने उसके भीतर का खोलता इतिहास? पढ़ा है कभी उसकी चुप्पी की दहलीज पर शब्दों की प्रतीक्षा में उसके चेहरे को? उसके अंदर वंश बीज बोते क्या तुमने कभी महसूस है उसकी फैलती जड़ों को अपने भीतर? क्या तुम जानते हो एक स्त्री के समस्त रिश्ते का व्याकरण? बता सकते हो तुम? बता सकते हो एक स्त्री को स्त्री दृष्टि से देखते उसके स्त्रीत्व की परिभाषा? अगर नहीं फिर जानते क्या हो तुम रसोई और बिस्तर की गणित से परे एक स्त्री के बारे में?
सोचा आज दुआ कर लूं। तेरा नाम पढ़ लो, नाम लेकर तेरा खुद को बदनाम कर लूं। सियासतों में उलझ तो गई है मोहब्बत की हकीकत, तो ख्वाब में ही सही। मेरा आधा हिंद तेरा आधा पाक पूरा कर लो। सही और गलत के पार जो मैदान है उसका पता कर लो। खुदा से छीन कर खुद तुझे खुदा कर लो। फिर देकर तेरा वास्ता रूमी से कुछ बात कर लूं। सोचा आज दुआ कर लूं। तेरा नाम तेरी याद में लिखी जो दिल्ली में नज्म है, पहुंचाकर उसे लाहौर पटवारा खाक कर दूं। तेरी ईदी में मिलाकर लोहड़ी की रेवड़ी सरहदे राख कर दूं। फराज को दिखाकर हीर मेरी लिखाई उसकी गुलजार कर दूं। बादशाही और जामा में गूंजे आजान साथ जिस शाम। एक ने मुझसे पूछा, जंगल क्या होता है? दूसरे ने कहा, और दर्द? मैं खामोश रहा। मैंने एक बड़े पिंजरे में दोनों को बंद कर दिया और ऊपर एक काली झीनी चादर डाल दी। कुछ दिनों बाद वह मुझे
जंगली जानवरों की तरह देखने लगे। पहले उनकी आंखें हरी हुई, अहिंसक पशुओं जैसी, फिर सुर्ख हिंसक पशुओं में बदल गई। खूंखार। वे भूखे थे। मैंने टुकड़ा फेंका, वे आहार छोड़ आपस में ही गुद गए, लहूलुहान हो गए। ताकतवर ने सब खा लिया, कमजोर ने उच्छिष्ट से संतोष कर दर्द से मुंह छिपा लिया। ये क्रम बहुत दिनों तक मैंने बना रहने दिया। भूखा रखना, टुकड़ा फेंकना, ताकतवर में दर्प जगाना और कमजोर में संतोष। और जब वे इसके इतने आदी हो गए कि कुछ और सोच पाना उनके लिए असंभव हो गया, तब मैंने उन्हें पिंजरे से निकाल दिया। अब वे खुले में खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे, टुकड़ा फेंके जाने की प्रतीक्षा में, लड़ने को तैयार, दर्प और संतोष के शिकार। बाल ठीक है, हाँ ठीक है, मेकअप ठीक है, हाँ ओके गो यार गो, माइक ठीक है, लाइट्स ठीक है, कैमरा ठीक है। नमस्कार, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में और उससे पूछेंगे, हाँ तो बताइए आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो आपको दुख देता होगा ना, देता है ना? थोड़ा दुख से बड़ा हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वो दुख बताइए, पता नहीं पड़ेगा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा लगता है। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, ये अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ के उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का? करते हैं ना? ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसके पंखता की पीड़ा ही मानेंगे। हाँ, एक और कोशिश। दर्शक देखिए, धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वो दोनों। बस करो, नहीं वो रहना दो, पर्दे पे वक्त की कीमत है। हाँ, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर है, देखिए। धन्यवाद। क्या हो रहा है? कहाँ से आ रही है आवाज? क्या हुआ ये? अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ओह माय गॉड, दारू की
चीखता नहीं, ना सर को बचाता है। उसके सर से बहता खून भी आहिस्ता आहिस्ता बहता है। ये माय गॉड, पीटते जाते हैं। निशब्द दृश्य है। सर सुन पड़ता है, वो ना हो जिप्सी है। पीटते जाते हैं। ये देखो कौन आया, कौन आया ये अरे ये देखो ठेकेदार आता है। वो ठोकर से ठेल कर आदमी को धकेल देता है बाहर सड़क पर। अरे तेरे जमी बर्फ के सिल से टकरा कर उसका सर फटता है और ठेकेदार हाथ से खून पोंछ लेता है। जिसने सर फोड़ा वही हो खून देता। हरे को रंग डाल कर पिलाओ। और वो आती रहती है लगातार। कमरे में 10-20 लोग हैं। वो वहां खड़े कुछ नहीं करते क्या? गप्पे लड़ाते हैं, हंसते मुस्कुराते हैं। हमारा क्या? लोगों की बेरुखी के अंदर बंद है पियक्कड़ी बैठकें, रंग भेद की हिंसा, दगाबाज दोस्तियां, जाति संहारक दल, चुगलियां, जंगी परमाणु बम का भय, गर्भपात, गोश्त की मंडियां, अस्त्रों की फैक्ट्रियां, ढुलमुल यकीनी में घिघियाहट, आंखें चुराना और कतराना, फालतू बहाने, खुदकर्जियां, चाकू, हथकड़ी, मार, चाबियां। सांप की तरह सब एक दूसरे से लिपटे हत्या के षड्यंत्र, अंदेशे बर्फ में जमे हुए। कैसी रहे बर्फ ये एक बार पिघला दी जाए तो?